हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स अपने मीडियम को चेंज कर सके, इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकें। तो आज हमारा द हिंदू का 15 मार्च का एडिटोरियल है, सऊदी इरानियन नॉर्मलाइजेशन चैलेंजेस इन वेस्ट एशिया। सो बिफोर रीडिंग दिस न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल वी शुड कीप वन थिंग इन माइंड, दैट व्हाट इज द बेसिक difference between a Hindi medium student and an English medium student. What is the difference? Have you ever thought about it? Or just you want to change your medium from Hindi medium to English medium? Right? Because you also know that changing a medium from Hindi to English is going to be beneficial for you and helping you to enhance your chances of getting into the civil service examination or cracking this examination even more. Right? So the basic difference lies is that when a Hindi medium student goes to school, what happens that whatever the dictation or the communication that happens from the teacher's side and to the student is 99.9% or you can say 100% in Hindi only. So what happens that a Hindi medium student receives all the knowledge and every single thing, all the communication in Hindi only. So his mind starts working in Hindi, and then whatever you receives, like whatever you are speaking something, so what happens that the teacher is speaking, suppose something, some kind of dictation is being given, so what happens that Hindi medium students writes in Hindi, he listens in Hindi, okay, and writes in Hindi, and then what happens, he goes back to home. Then what happens that when he goes back to home, the homework that he does, what happens, he just memorize those things, he does everything in Hindi, he memorize in Hindi, then he goes to the school, school next day, then the teacher asks, okay, you stand up and you just ask me, tell me this. So what happens, then he says everything in Hindi. So but one grammar period also happens, right? Like if you are a student from the first class to intermediate, every single day you might have gone to school, one grammar period must have definitely happened. एक grammar का period तो होता ही होगा. What happens in the English medium, वहां भी एक ही grammar का एक ही period होता है. Then तो यहाँ पर तो similarity है, but the basic difference lies that the medium of instruction, the communication between a student and a faculty member in English medium happens only in English. तो वो he listens in English mostly, 99.99% the communication happens in English only. तो वो English में ही सुनता है. And उसके बाद what happens that he writes that also in English. Then he goes back to the home, जो homework करता है that he also does in English, ठीक है ना. उसके बाद वो memorize भी English में करता है. Then the next day when he goes to the school, then the teachers ask, okay, you stand up and tell me this. Then what happens that he speaks in English, and the entire environment, now in a nutshell, the most important thing that comes out, the basic difference between a Hindi medium student and an English medium student is that the environment they have been into, right? जो environment था वो इंग्लिश का था पूरा, और आप लोग फोकस क्या करते हैं, केवल इंग्लिश पे. आप क्या करते हैं, केवल ग्रामर पे फोकस करते हैं, इंग्लिश की केवल ग्रामर पे फोकस करते हैं. तो गलत वो तरीका है, तरीका ही गलत है, इसीलिए तो आप लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना. तो ये जो द हिंदू का एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करने से पहले, ठीक है ना, तो आप लोग को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, बिल्कुल पूरी 100% गारंटी है. विद इन अ मैटर ऑफ 1 मंथ अगर आप बिल्कुल फॉलो करते हैं, वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम आस्किंग यू टू डू एवरी सिंगल डे, यू हैव टू जस्ट, वो जैसे होता नहीं, वो जो खड़खड़ा नहीं होता है, उसमें जो वो लगा होता है घोड़ी या घोड़ा, तो वो ऐसे करके चलता है ना, बिल्कुल आपको कुछ दुनिया नहीं देखना, इधर ना उधर, बिल्कुल फोकस हो जाना है. क्योंकि आप सोचिए, अगर एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को 1 साल लगेगा प्रिपरेशन करने में, तो आपको 1.5 मंथ लगेगा, आपको 1.5 ईयर लगेगा, सोच लीजिए, ठीक है ना. सिर्फ आपको कितना लगेगा, 2-4 महीने अगर ज्यादा लगते हैं और आप अपने मीडियम को शिफ्ट कर सकते हैं, तो सोचिए आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल इंक्रीज होते हैं. और जो हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं, दिस इज द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस. आप लोग पढ़ते ही नहीं है, और आपको क्या होता है, जब भी कोचिंग में जाते हैं तो आपको क्या होता है, इसको ट्रांसलेट करके दे दिया जाता है आपको. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट you people are dependent, you people are made dependent, कि तुम डिपेंडेंट ही रहो. और जब आप डिपेंडेंट हो तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की क्रैकिंग करने के बारे में आप कैसे सोच सकते हो, हाउ कैन यू थिंक, ठीक है ना. तो डिपेंड होकर नहीं हो सकता, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बट इट इज पॉसिबल. आप, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप समझो, उसके बाद में एट द एंड हिंदी में भी समझाऊंगा पूरा, जिससे कि आपका ये पूरा जो है, ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से बना रहा है, और इंग्लिश में धीरे धीरे करके आप आ जाए. जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होंगी वो मैं अंडरलाइन करूंगा, ठीक है ना. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं इसमें, ठीक है ना, फ्रेजेस कौन से होते हैं, ठीक है ना. फिर उसके पहले अब देखिए, सबसे पहले सपोज अब आते हैं न्यूज़पेपर पे, ठीक है ना. whenever you are opening the newspaper every single day, what happens that when you open the editorial, because everybody just goes to the editorial, so we'll have to think that are we just like हर्ड की तरह फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कि नहीं यार, आया एडिटोरियल उसको पढ़ना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक, how we have to think, we have to just look at this, the heading. तो आपको देखना, अच्छा, this heading Saudi Iranian normalization challenges in West Asia. So आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि this particular topic is going to be related with diplomacy. Diplomacy क्या होता है, एक कंट्री से इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इनके बीच में जो भी इश्यूज हैं उनके बारे में बातचीत करने के लिए, जब भी एक जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर
हैं और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अगर वो साथ में मिलकर के बैठ के कोई भी बात करते हैं तो दिस एंटायर प्रोसेस कॉल्ड द डिप्लोमेसी। अब इतना आपको जानना चाहिए, इससे क्या होगा, आपकी मेंटल फैकल्टी डेवलप होगी। तो आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, आपको हार्डवर्क तो करना ही है बट स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। स्मार्ट प्रिपरेशन करिए, आप समझिए कि क्या है क्या। तो जैसे डिप्लोमेसी, अच्छा ये हमारा डिप्लोमेसी से रिलेटेड, ऑलराइट, इट इज रिलेटेड विद डिप्लोमेसी, इट इज रिलेटेड विद डिप्लोमेसी। फिर क्या है, अब ये हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें कहां से रिलेटेड है, तो जनरल स्टडीज पेपर सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। जनरल स्टडीज पेपर सेकंड से रिलेटेड है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है ना। तो उसमें अब ठीक है, अच्छा इतना तो पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद व्हेन यू रीड दिस तो आपके माइंड में समरी होनी चाहिए, और समरी कैसे होनी चाहिए, 3 4 5 पॉइंट की बस। इससे ज्यादा समरी की जरूरत नहीं कि पूरा आपने लिख के छाप दिया। तो समरी के की पॉइंट्स वो होते क्या है, की पॉइंट्स अभी इनको डिस्कस करेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल डिस्कशन आई एम जस्ट गोना टेल यू द समरी इन 1 to 3 लाइंस, ठीक है ना। होता क्या, देखिए ये जो भी है सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मल हो गए हैं इनके क्या रिलेशंस, ठीक है ना, इनके रिलेशन जो है नॉर्मल हो गए, और ये दोनों कंट्री कहां आती है, वेस्ट एशिया में आती है। ऐसे आप इसको ब्रेक करके समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि इसमें मतलब और कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, अब मैं आपको बताता हूं पूरे एडिटोरियल के बारे में 2-3 लाइन बता देता हूं। ऐसे ही समरी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सोचिए आप तो 365 डेज पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, और अगर हर एडिटोरियल की आप अगर मान लीजिए हर एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है उसकी समरी बनाएंगे और एक एक पेज, क्योंकि तो 365 पेजेस हो जाएंगे वैसे ही, तो आपको 3 4 5 लाइन में बनाने, इतना कंसाइज करना है कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ के निकले आप और किसी ने पूछ लिया आपसे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इन द न्यूज़पेपर टुडे विद रिस्पेक्ट टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एटलीस्ट यू शुड हैव ऑन योर फिंगर टिप्स, हां ये पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि यूएस has failed as a security provider, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द वेस्ट एशियन रीजन। क्यों हुआ, इराक में जो उन्होंने डिजास्टर किया, देन अफगानिस्तान को वो छोड़ के भाग गया। अभी आप देखिए अफगानिस्तान में क्या स्थिति, व्हाट इज द कंडीशन इन द अफगानिस्तान राइट नाउ, द तालिबान इज रूलिंग, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान को छोड़ करके भाग गए वो, ठीक है ना। तो रोल ऑफ द यूएस, तो यूएस फेल हो गया सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। दैट इज व्हाई दीज 2 कंट्रीज, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस। और आजकल आपको पता है ना कि यूएस के लगभग बराबर खड़ा है चाइना, ठीक है ना, जो कि हमारे से उसके रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। तो क्या हुआ, चाइना के पास ये लोग गए, तो जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये डील ब्रोकर कर दी। इन दोनों के बारे में मतलब इनसे भी बात की और दोनों लोग को साथ में ले आए, जिससे कि आसानी से वेस्ट एशियन रीजन में चीजें आगे बढ़ सके, ठीक है ना। जो भी इनके रिलेशंस हैं वो नॉर्मल हो सके आसानी से, ठीक है ना। अब क्या है, अगला क्या है, अब यहां पर अगर चाइना जाएगा वेस्ट एशिया रीजन में तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी करेगा। तो हमें क्या करना है, इंडिया से भी अब हमें जो है वेस्ट एशियन रीजन में इंडिया से मतलब इंडिया जाएगा किसके पास, चाइना से इंगेज करेंगे हम लोग वहां भी, ठीक है ना। तो हमें ऐसे ही मतलब चलती है कि मन मिले ना मिले लेकिन हाथ मिला के चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसकी समरी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, यूएस भी है, इसमें क्या है, इंडिया भी है। तो हम इसको रीड क्यों करें, मतलब इंडिया का कुछ इंटरेस्ट तो होना चाहिए तभी तो हमको रीड करना है ना। तो अब जो ये हुई है डील, इससे इंडिया में क्या नुकसान है क्या, तो अब हम देखेंगे कि इंडिया के कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं वेस्ट एशिया में, क्योंकि अब वहां पर चाइना जाए तो चाइना का रोल ज्यादा हो जाएगा अगर, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, इसलिए हमें इंडिया को चाइना से इंगेज करना पड़ेगा। तो ये इसकी मतलब छोटी सी समरी टाइप की है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको रीड करते हैं, रीड करने के बाद आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जो भी हमारा एडिटोरियल है, ठीक है ना। और इसको स्लोली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एवरी सिंगल डे वी आर डूइंग दिस एंड विल कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है ना। तो आपको जस्ट यू हैव टू कनेक्टेड विद द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे कि आप लोग चेंज करो यार, अपने अंदर की जो क्षमताएं उसको रियलाइज करो, ठीक है ना। अगर आप नहीं करोगे तो कौन बचाएगा, अगर आप खुद को नहीं बचा सकता आपको कोई नहीं बचा सकता, ट्रस्ट मी। मतलब राइटिंग में दे रहा हूं कि अगर आप खुद नहीं चेंज करोगे तो नथिंग विल चेंज, बट एक बार चेंज करोगे ना देन एवरीथिंग विल चेंज, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सऊदी इरानियन नॉर्मलाइजेशन चैलेंजेस इन वेस्ट एशिया। यू विल हैव टू लिसन हाउ आई एम रीडिंग, यू हैव टू इमिटेट, जैसा मेरा प्रोनाउंसिएशन है। और सबसे अच्छे बेस्ट इंसान से पढ़ो आप, जो भी आपको यूट्यूब में सबसे बेस्ट लगे, अगर कोई और दिखता बेस्ट से पढ़ो, जिससे आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। आपको किसी के यूट्यूब के व्यूज नहीं बढ़ाने, आपको किसी कोचिंग की फीस नहीं बढ़ानी, आपको पहले अपनी लाइफ पे फोकस करना है कि सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। उस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो जैसे मैं रीड कर रहा हूं आपको फोकस करना, जितना अच्छा एक्सप्रेशन होगा, जितने सही तरीके से आप रीड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग सही डेवलप होगी, ऑलराइट। ज्यादा सारे वर्ड मीनिंग अगर आपको नहीं पता तब भी इफ यू आर रीडिंग इन अ वेरी करेक्ट मैनर यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, ऑलराइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। सऊदी इरानियन नॉर्मलाइजेशन चैलेंजेस इन वेस्ट एशिया। अब जो है सऊदी अरेबिया और ईरान, सऊदी अरेबिया एंड ईरान का जो नॉर्मलाइजेशन हो गया, किसमें हो गया, रिलेशंस में, ठीक है ना। अब क्या चैलेंजेस हैं वेस्ट एशिया में, ठीक है ना, ये देखना है हमको, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन मार्च 10 2023 सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है ना, साइंड एन अग्रीमेंट इन बीजिंग, साइंड एन अग्रीमेंट इन बीजिंग, मतलब अग्रीमेंट इनका कहां साइन हो रहा है, बीजिंग, मतलब कहां, चाइना में साइन हो रहा है, ठीक है ना,
टू रीस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। अब ये सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है ना, इनको लिख लीजिए आप, ठीक है ना। टू रीस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज मतलब जो उनके डिप्लोमेटिक समझौते हैं या मुद्दे हैं, या मतलब जो डिप्लोमेटिक उनका जो रिश्ता है उसको रीस्टैब्लिश मतलब उनको क्या करना, फिर से स्थापित करना है, ठीक है ना। रिस्पेक्ट ईच अदर्स, ठीक है ना, रिस्पेक्ट ईच अदर्स। सोवरेनिटी ये वर्ड आपको याद करना, सोवरेनिटी एंड मेंटेन नॉन इंटरफेरेंस इन द अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स, ठीक है ना। मेंटेन नॉन इंटरफेरेंस को भी आप लिख लीजिए, नॉन इंटरफेरेंस इन द अदर्स डोमेस्टिक मतलब उनके जो घरेलू जो भी मुद्दे हैं उसमें कोई कंट्री ना बोले कि आपकी कंट्री में ये हो रहा है, आप ऐसे रूल्स बनाइए वैसे रूल्स बनाइए, ना बताएं, ठीक है ना। सोवरेनिटी मतलब क्या है कि जैसे इंडिया इज अ सोवरेन नेशन, ठीक है ना, तो सोवरेन मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नो अदर कंट्री has a right to tell me that you should bring this law that law, ठीक है ना। तो सोवरेन मतलब कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंट पावर है हमारे पास, हम कैसे अपनी कंट्री को रन करना चाहते हैं। सो दैट इज मीन द सोवरेनिटी, ठीक है ना। इसलिए बताया गया कि रिस्पेक्ट each other's sovereignty and maintain non-interference in the others domestic affairs. I hope everybody must be understanding this much here, ठीक है ना, कि एक अग्रीमेंट होता है और ये कहां होता है, इसके बीच में होता है, सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, साइंड एन एग्रीमेंट इन द बीजिंग, ठीक है ना। अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिए क्योंकि ये हर एडिटोरियल में आते ही जाएंगे, ठीक है ना। और आपको इसका मीनिंग नहीं लिखना, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एडिटोरियल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, सुनते 10 बार 20 बार 50 बार आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं, द अग्रीमेंट ऑल्सो रीइंस्टेट्स, रीइंस्टेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी यूज होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। रीइंस्टेट्स टू प्रीवियस अकॉर्ड्स, जो इनके पीछे के दो, इससे पहले भी 2 समझौते हो चुके हैं, किसके बीच में, सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में, उनको भी रीइंस्टेट करता है, मतलब उनको भी और मजबूत कर देता है, उनको भी मतलब जो है अस्तित्व में ला देता है, ठीक है ना। वो भी मतलब अब वो है कौन से, 1, अब जो एक है मतलब पहला कौन सा है, ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन, ठीक है ना, ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन साइंड इन 2001 में सिक्योरिटी कॉपरेशन मतलब एक दूसरे कंट्री को, मतलब जो है सऊदी अरेबिया एंड ईरान एक दूसरे को मदद करेंगे सिक्योरिटी में। वो कैसे कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे को, मतलब अगर आपके कंट्री पे कोई थ्रेट उनको लग रहा है, कहां से, कि ये जो कंट्री हमारी सीरिया है एंड यमन, अगर इनमें से इनको कहीं पर खतरा लग रहा है तो आप इनको बताएंगे, और उनको लग रहा है तो इनको बताएंगे। मतलब अगर इनको सऊदी अरेबिया को लग रहा है कि ईरान को कोई खतरा है तो वो बताएंगे, सिक्योरिटी कॉपरेशन असाइंड जो है ना इनका जो अग्रीमेंट है 2001 में, उसके हिसाब से बताएंगे इनको कि आप ये चीजें देख लीजिए, थोड़ा सा मतलब अवेयर रहिए, ऐसा कुछ हो सकता है। और सेम गोज विद द ईरानियन टू द सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, ऐसे करना है इनको। एंड द अदर गोइंग बैक टू 1998, है ना, गोइंग बैक टू 1990 मतलब गोइंग बैक टू मतलब क्या, पीछे 1998 में भी एक हुआ था, 1998 में हुआ था, और वो कैसे हुआ था, डीलिंग विद द इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल टाइज, ठीक है ना। उसमें जो भी ये थे कल्चरल टाइज थे, साइंटिफिक जो मुद्दे थे, और टेक्निकल और इकोनॉमिक जो भी मुद्दे थे, उनसे ये डील करता है, जो 1998 में हुआ था, ठीक है ना। ये 2 अकॉर्ड्स के बारे में बात हो गई, ठीक है ना। दिस अग्रीमेंट एंड्स 7 years ऑफ डिप्लोमेटिक इस्ट्रेंजमेंट आपको ये वर्ड इसको नोट करना है। इस्ट्रेंजमेंट मतलब क्या है, जो भी मन मुटाव था, मतलब आपस में जो अच्छी नहीं बनती थी, ठीक है ना, जो एक मतलब रैश था मतलब दोनों के बीच में, सो जो ये अभी अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, ये सऊदी अरेबिया और जो ये वाला अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब यहां बताया गया दिस अग्रीमेंट एंड्स 7 years, 7 साल का जो भी मतलब इनका डिप्लोमेटिक स्ट्रेंजमेंट था कि आपस में बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है ना, तो उस डिप्लोमेटिक स्ट्रेंजमेंट मतलब क्या है कि दोनों कंट्री एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है बातचीत करने में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक स्ट्रेंजमेंट, ठीक है ना, बिटवीन द 2 गल्फ नेबर्स, क्योंकि यहां पर गल्फ है तो इनको मतलब आसानी से बोल सकते हैं कि ये लोग गल्फ नेबर भी हैं, ठीक है ना, गल्फ में पड़ोसी हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, दे हैड कन्फ्रंटेड, अब मतलब क्या है कि जब ये अभी जब तक ये साइन नहीं हुआ था तो उस समय में क्या हो रहा था, जब तक ये वाला अभी जो है नॉर्मलाइजेशन वाला जो ये मतलब हुआ, साइन हुआ है, तब तक क्या हो रहा था, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान दे हैड कन्फ्रंटेड ईच अदर इन द प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है ना, प्रॉक्सी वॉर्स। अभी आपको मैंने बताया मतलब जैसे मान लीजिए कि यूएस को अगर मान लीजिए कहां पर अटैक, अगर मान लो यूएस को सऊदी अरेबिया पे अटैक करना है तो वो मतलब हेल्प लेगा किसकी, पाकिस्तान की हेल्प लेगा, ठीक है ना, तो वो पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के चलाएगा, मतलब फेस ऑफ द यूएस विल नॉट बी विजिबल टू सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया को लगेगा कि पाकिस्तान हमसे डायरेक्ट लड़ाई कर रहा है, ठीक है ना, बट होता ऐसा है तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर, ठीक है ना, प्रॉक्सी वॉर। जैसे आप लोग अटेंडेंस लगाते होंगे ना क्लासेस में, आपका फ्रेंड नहीं है बट फिर भी आपने ऐसे बोल दिया हाँ मैम, ठीक है ना, वो होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर, ऑलराइट। तो प्रॉक्सी वॉर करते थे, इससे पहले मतलब एक दूसरे के मतलब आमना सामना होता था, ठीक है ना, तो उसके बाद ये करते प्रॉक्सी वॉर होता था, कहां होता था, सीरिया और यमन जो 2 कंट्री हैं जहां पर वॉर अक्सर मतलब चला करता है, ठीक है ना, वहां होता कैरिड आउट, और मीडिया कैंपेन्स को भी बहुत ज्यादा चलाया गया, ठीक है ना, एंड कैरिड आउट मीडिया कैंपेन्स, ठीक है ना, ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, मतलब जो है बताया गया बहुत ज्यादा मतलब आपस में दुश्मनी है, इसको दिखाया गया आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी है, ठीक है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी है,
ऑफन ऑन सेक्टेरियन बेसिस, जैसे मतलब जैसे मान लीजिए मुस्लिम है ना, जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म है तो उसमें क्या है, शिया एंड सुन्नी है, तो वो एक सेक्ट क्या हो गया, शिया हो गया, एक सेक्ट हो गया सुन्नी, ठीक है ना। एंड हैव ऑन ओकेजन कम क्लोज टू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, और कभी कभार ऐसा भी हुआ कि आमने सामने बिल्कुल युद्ध होने जैसी स्थिति भी आ गई, पर्टिकुलरली इन 2019, विशेषकर 2019 में, ठीक है ना, व्हेन सस्पेक्टेड ईरानियन एजेंट्स अटैक्ड सऊदी ऑयल फैसिलिटीज, ठीक है ना, जो सऊदी अरेबिया की जो ऑयल की जो हमारी मतलब वो थी ना फैक्ट्रीज थी, उन पर अटैक मतलब होने वाला था, ऐसी स्थिति भी आ गई थी पर्टिकुलरली 2019 में, ठीक है ना। तो इतनी ज्यादा लड़ाई थी सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, चाइनाज फॉरेन अफेयर्स हेड वांग यी हु ब्रोकर्ड, ठीक है ना, जो ब्रोकर मतलब क्या होता है, आप लोग जब रूम लेते हो तो वो जो आपके लैंडलॉर्ड होते हैं और आपके बीच में एक डील होती है, तो उसको जो बंदा कराता है उसको क्या कहते हैं, ब्रोकर। तो यहां पर वो बंदे हैं वांग यी, और ये कौन है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ये डील कराई है, ठीक है ना, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। द अग्रीमेंट, ठीक है ना, डिस्क्राइब्ड इट एज अ विक्ट्री फॉर डायलॉग, इसको लिख लीजिए, विक्ट्री फॉर डायलॉग, ठीक है ना। इन्होंने ही, वांग यी ने इसको बोला है कि जो ये अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ है इसको क्या बोलते हैं, विक्ट्री फॉर डायलॉग एंड विक्ट्री फॉर पीस, मतलब जो है शांति की जीत है और बातचीत की जीत है, कि बातचीत करने से मुद्दे सुलझ रहे हैं, ठीक है ना। द सऊदी अरब मिनिस्टर सेड हिज कंट्री फेवर्ड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस एंड डायलॉग। सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि उनका जो देश है, मतलब सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है, फेवर्ड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस एंड डायलॉग, मतलब राजनीतिक तरीके से बातचीत करके हर चीज का सॉल्यूशन निकाला जाए, इसका वो समर्थन करते हैं, फेवर करते हैं, समर्थन करते हैं, एंड बातचीत को भी वो समर्थन करते हैं, ये बोला, ठीक है। वाइल हिज ईरानियन काउंटर पार्ट, अब ईरानियन काउंटर पार्ट, तो अब ये क्या हो गया, ये जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है जैसे कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है ना, वो और मान लीजिए यूएस के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है ना, फॉरेन मिनिस्टर जो है, वहां के जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों लोग क्या है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, मतलब बराबर, उनकी भी पोस्ट वही है, यहां इनकी भी पोस्ट है, ठीक है ना। अफर्म दैट, निश्चित किया है, ठीक है ना, किसने निश्चित किया है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये निश्चित किया है दैट हिज कंट्री वाज परसुइंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर रीजनल स्टेप, ठीक है ना, इन्होंने और तैयारी की थी रीजनल स्टेप की, कि आपस में जो इनके मतलब जो ये पूरा वेस्ट एशियन जो रीजन है उसमें जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उनमें आपस में मतलब उसकी तैयारी की थी कि उस हिसाब से मतलब आपस में मिल करके सब लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है द अकॉर्ड हैज बीन वेलकम्ड, द अकॉर्ड मतलब जो ये समझौता हुआ है, ठीक है ना, द अकॉर्ड हैज बीन वेलकम्ड, इसका स्वागत किया गया है, ठीक है ना, हैज बीन वेलकम्ड, इसका स्वागत किया गया है अक्रॉस वेस्ट एशिया, पूरे वेस्ट एशियन रीजन में जितनी भी कंट्री है सभी ने स्वागत किया है इसका, ठीक है ना, उसको अच्छा माना, ठीक है ना। रन अप टू द डील, अब ये हेडिंग है, अब रन अप टू मतलब कि अब ये डील हुई कैसे, उसके बारे में ये वाला पैराग्राफ बता रहा, ठीक है ना। सो there had been meetings of Saudi Arabia and Iranian officials in Baghdad and Muscat, तो मतलब क्या है कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान के जो मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग्स हो रही थी, कहां पर, बगदाद में एंड मस्कट में, टू रीच ऑन दिस डील, ठीक है ना, जो कब हुई, 10 मार्च 2023 को हुई, ठीक है ना, इन 2021 एंड 2022, ठीक है ना, इन समय में मस्कट में और बगदाद में इन ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही थी, बट परहैप्स लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन एड्रेसिंग इश्यूज दैट डिवाइड द टू कंट्रीज, ठीक है ना, ये दोनों कंट्रीज में बातचीत हो रही थी, बट लेकिन जो मेन मुद्दे जिनको एड्रेस करना चाहते थे, जिनके ऊपर फोकस करना चाहते थे, उनके ऊपर बहुत अच्छी ज्यादा बहुत मतलब थोड़ी सी मतलब जो है हल्की फुल्की मतलब हुई, मतलब डेवलपमेंट हुई कि हाँ चलिए कुछ ऐसा करते हैं, तो ये दो कंट्रीज के बीच में हुआ। अब क्या है, द वॉर्स इन सीरिया एंड यमन, जो सीरिया और यमन में जो वॉर चल रहा है वहां ये दोनों कंट्री इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ठीक है ना। एंड सऊदी कंसर्न्स रिलेटिंग टू ईरान्स मोबिलाइजेशन ऑफ शिया कम्युनिटीज इन द रीजन अगेंस्ट द अरब स्टेट, ठीक है ना, जो अरब स्टेट हैं, जो भी सऊदी अरब है, ठीक है ना, तो सऊदी अरब को ये डर लग रहा था, ये मतलब उसकी चिंता थी, और मतलब किससे संबंधित थी, ईरान के मोबिलाइजेशन ऑफ शिया कम्युनिटी, जो ईरान के अंदर शिया कम्युनिटी है उसको ये लोग मोबिलाइज कर रहे थे सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मतलब इन जनरल आप समझने की कोशिश करिए कि ये की स्टोरी पूरी चल रही कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ, तब जाके ये डील हुई है, ठीक है ना। However, these interactions had confirmed that the Arab states were prepared to pursue their interest without US involvement, ठीक है ना, without US involvement। अभी मैंने बताया ना आपको कि US as a security provider has failed in the West Asia, ठीक है ना। तो क्या है कि इन लोगों का कहना है कि जो ये इंटरेक्शन हुआ है किसका, सऊदी अरेबिया और ईरान का जो इंटरेक्शन हुआ, जो लोग आपस में मिले हैं, वो इस बात को मजबूत करता है, पक्का करता है, कंफर्म करता है दैट द अरब स्टेट्स वर प्रिपेयर्ड टू परस्यू, कि अरब स्टेट अब इस चीज के लिए तैयार थे, ठीक है ना, कि उनका जो हित है, देयर इंटरेस्ट है विदाउट यूएस इन्वॉल्वमेंट, कि यूएस के को मतलब शामिल बिना किए हुए हम इस डील को आगे बढ़ाएंगे। दिस वाज लार्जली द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग रीजनल डिसएंचेंटमेंट विद द यूएस, ठीक है ना, लार्जली
ये क्या है कि जो ये वेस्ट एशिया का रीजन है उसका मोह भंग हो गया है, डिसइंचेंटमेंट, मतलब यूएस से मोह भंग हो गया। क्यों? क्योंकि मतलब यूएस का क्यों भंग हो गया? विद द यूएस एज द सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि यूएस अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तो उसके मतलब उसको लेकर के अब इनका ये रहेगा कि नहीं, अब हमें मतलब है नहीं बिल्कुल भी यूएस के ऊपर ये ट्रस्ट कि यूएस हमें सिक्योरिटी सही से प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जांपल जो है कि जो दिया इन्होंने, देखिए, अलोंग साइड स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द वॉशिंगटन दैट इट वाज लेस एंथुसियास्टिक अबाउट बीइंग द रीजनल सिक्योरिटी गारंटर, ठीक है ना। तो यूएस भी बोला कि नहीं हमें भी बहुत ज्यादा आपको मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोई वो नहीं है, ठीक है, हमें भी मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, द यूएस मिलिट्री फेल्योर्स इन इराक एंड अफगानिस्तान, ठीक है ना, कंट्रीब्यूटेड टू इट्स लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी अमंग द रीजनल अलाइज, ठीक है ना। तो ये सारे मतलब यूएस के रीजनल अलाइज हैं, सऊदी अरबिया है, ईरान है, बट क्या हुआ, तो अफगानिस्तान में और इराक में जिस तरीके से फेल्योर हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, बिकॉज ये इन्वॉल्व थे वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, बट दे हैव कंप्लीटली बीन फेल्ड। तो उसी वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, जो इनकी विश्वसनीयता थी यूएस की एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब हम लोग किसके साथ जाएंगे, चाइना के साथ जाएंगे। तो चाइना एज एन ऑप्शन आया, ठीक है ना। तो यहां तक ये बाकी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको क्या करना है, आपको इसको अपने मन से जो भी आपको समझ में आया, यू हैव टू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस पर्टिकुलर नंबर 7080507433 पे आप सेंड करिए। और जितना भी आप स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना, जितना भी आपने सुना है, जो भी आपको समझ में आया, जो भी स्टोरी, देखिए अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, सो देयर हैज टू बी सम स्टोरी इन योर माइंड फर्स्ट। अब क्या है, इसको मैंने आपको एक स्टोरी की तरह बताया, नाउ यू हैव सम स्टोरी इन योर माइंड, ठीक है ना। अब उस स्टोरी को क्या है, जो भी टूटी फूटी आपको आती है, यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग एंड सेंड वॉइस नोट्स ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. I will reflect back on you. Then see you in the next video.